Assalamu alaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver the lecture on pathology of vulva. We will actually break the pathology of vulva in 2 to 3 parts. Previously, we are done with vagina, right? We discussed everything, the developmental anomalies and all, pre-malignancy, malignancy, right? So it's time for vulva now. The vulva, as you know, beta, it's the outermost part that includes the labia. uh, if you remember a little bit from the anatomy, the labia majoras, minora, right, from both the sides, and the urethral opening and the vaginal opening. I hope this makes up your vulva, right? This is the route to the urinary system. This is the route to the, obviously, inside to the vagina and then cervix, right? So this is your vulva beta from right outside, and vulva is more prone to superficial infections than skin infections anywhere else. Yeah, vulva बाहर से बेटा ये एक obviously vulva के around there is obviously skin, and you need to keep in your mind that vulva के जो superficial infections होते हैं वो उतने सुपरफिशियल इन्फेक्शन स्किन में कहीं नहीं होते. रिमेंबर, राइट? दिस में बी ड्यू टू सो मेनी रीजंस, सिक्रेशंस एंड अदर, but the diseases we can discuss is the diseases that occur on the vulva. They include the infections and inflammations, that is the non-specific vulvitis, especially in the immunocompromised patients. Some skin cyst can appear. We'll discuss the Bartholin cyst. Some tumors can appear on the vulva. That can be the squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, and melanoma. Right? Squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, and melanoma all are the malignancies that we have discussed in derma as well. So starting with the very important topic is the Bartholin cyst. Why does it appear? How does it look like? Let me tell you. Bartholin cyst, actually what happens is beta, female have got Bartholin gland, right? So if this is a Bartholin gland and this is the duct of the Bartholin gland, then what happens is there is infection and acute inflammation of Bartholin gland. Bartholin gland की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को ज़ाहिर हम एडिनाइटिस कहते हैं. और क्या होगा बेटा, जब इस बार्थोलिन ग्लैंड की इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बनेगा, और वो एक्सुडेट इस डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, और इस ग्लैंड से बनने वाली सिक्रेशन यहाँ पे जमा हो जाएंगी. और उन ग्लैंड से बनने वाली सिक्रेशन जब यहाँ पे जमा हो जाएंगी तो डक्ट के अंदर सिस्ट बन जाएगा, कुछ इस तरीके से कि आपका ये ग्लैंड है, ये डक्ट थी नॉर्मली, जिसमें अभी ये बड़ा सिस्ट बन चुका है. क्यों सिस्ट बना? क्योंकि नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है. ये ऑब्स्ट्रक्शन किसने करवाई? इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट ने. और यहाँ ग्लैंड में जो सीक्रेशंस बन रही थी वो यहाँ पे सीक्रेशंस जमा हो गई और ये एक डायलेटेड सिस्ट बन गया, जिसको हम बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं. ठीक है, और जाहिर सी बात है बेटा, ये ग्लैंड है आपका बार्थोलिन ग्लैंड, और उसके नीचे डक्ट के अंदर सिस्ट बन चुका है. इस ग्लैंड के अंदर ज़ाहिर है इन्फेक्शन होगा तो बैक्टीरिया एंटर होगा इन्फेक्शन की वजह से, ज़ाहिर है, जो कि इन्फेक्शन कराएगा. फिर इन्फ्लेमेशन होगी तो यहाँ पे पस बनेगा और एप्सिस बन जाएगा. पस की कलेक्शन को हम एप्सिस ही कहते हैं. देखें, जब आपके बार्थोलिन ग्लैंड का इन्फेक्शन हुआ, ज़ाहिर है फिर इन्फ्लेमेशन हुई, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बना. उसकी वजह से आपकी जो डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई. डक्ट के ऑब्स्ट्रक्ट होने से क्या हुआ बेटा? डक्ट के अंदर सिस्ट बन गया. ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नीचे डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट है, ग्लैंड से सिक्रेशन आ रही हैं तो वो यहाँ पे जमा हो जाएंगी, और ऊपर जो ग्लैंड है इसके अंदर एप्सिस बन जाएगा. क्यों एप्सिस बनेगा? ज़ाहिर है बेटा इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आएंगे तो वो पस कलेक्शन होगी तो एप्सिस बन जाएगा ग्लैंड के अंदर. ठीक है, एंड दिस duct cyst is lined by what epithelium? There can be transitional or squamous epithelium, right? And the size of this duct can vary. It can be large up to 3 to 5 centimeter in diameter, right? And this cyst, that is the Bartholin cyst, even I can show you, right? You can see it from the vulva. This is a large 3 to 5 centimeter Bartholin duct cyst. Okay, this appears on vulva, and this is obviously not good looking thing.
and it is painful and it causes local discomfort, right? Okay. It can appear in women in all ages, not especially in postmenopausal, but they can occur in all the ages. As I mentioned, this cyst can cause pain, and it is obviously causing local discomfort. The management option for this is beta, this cyst which is present in the duct, it should be excised. We can do one thing, that we can just excise out this cyst. Or one more thing we can do is marsupialization. What is marsupialization? ओपनिंग दिस सिस्ट, ताकि जो इस सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड है वो ड्रेन आउट हो सके, ठीक है. सो टू प्रोसीजर्स यू कैन डू इज, वन इज द एक्सीजन ऑफ दिस सिस्ट, कंप्लीट एक्सीजन ऑफ द सिस्ट. अनदर थिंग इज यू जस्ट ओपन दिस सिस्ट, ताकि इसके अंदर जो सीक्रेशन है वो ड्रेन आउट हो जाए और स्वेलिंग ख़त्म हो जाए. परमानेंटली ओपन कर दें इसको, तो इसको हम मार्सुपिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है बेटा. दिस इज ऑल अबाउट योर बार्थोलिन सिस्ट. होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट? ओके. Right after the Bartholin cyst, right after this cystic problem, few more things we can discuss in the pathology of the vulva, including जो आपके बेटा बेसिस में दिया हुआ है. Number 2 is the non-neoplastic epithelial disorders. The epithelial disorders, वल्वा की जो एपिथेलियम है उसके डिसऑर्डर्स, लेकिन याद रखें नॉन नियोप्लास्टिक, कोई मेलिग्नेंसी नहीं है, ठीक है. सबसे पहली चीज़ आ जाती है ल्यूकोप्लेकिया. व्हाट? लीकोप्लेकिया. लीकोप्लेकिया एक ऐसी कंडीशन है वल्वा की, जिसमें क्या होता है, वल्वा के ऊपर बेटा वाइट प्लेक्स बनते हैं, दैट आर लिटिल बिट ओपेक एंड काइंड ऑफ एपिथेलियल थिकनिंग इज देयर, और वो बड़े प्रूरेटिक होते हैं. और जाहिर सी बात है, कोई चीज़ प्रूरेटिक होगी तो आप उसको मुसलसल बेटा इचिंग करेंगे, इसके ऊपर खारिश करेंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर स्केलिंग बन सकती है, ठीक है. अगेन, व्हाट इज ल्यूकोप्लेकिया? ल्यूकोप्लेकिया इज द एपिथेलियल डिसऑर्डर ऑफ वल्वा, जिसमें क्या होता है, वल्वा के ऊपर वाइट कलर के प्लेक्स बनते हैं और वल्वा की एपिथेलियम आपको थिक देखने को मिलेगी. और जाहिर है बेटा, जब ये ल्यूकोप्लेकिया अपीयर होगा वल्वा की सरफेस पे, तो वो ये जो प्लेक्स हैं दे आर वेरी मच प्रूरेटिक, तो बहुत ज़्यादा इचिंग कराते हैं, ठीक है बेटा. एंड यू कीप ऑन स्क्रैचिंग इट, जिसकी वजह से स्केलिंग भी हो सकती है. लेट मी शो यू ल्यूकोप्लेकिया ऑन वल्वा. राइट, कैन यू सी इन दिस पिक्चर बेटा वल्वा, राइट, एवरीथिंग. यू कैन सी दीज आर द वाइट प्लेक्स, दीज आर लिटिल बिट ओपेक and kind of thickening you can see in the skin, right? This is leukoplakia beta, and this is very much pruritic. Don't forget these white plaques, these are pruritic, so you keep on scratching over it, so it may cause scaling, right? क्वेश्चन ये है कि ये क्यों बनता है यहाँ पे. इसके पीछे जो causes है बेटा, one is the inflammatory disorders of vulva. Some non-neoplastic causes may be there behind leukoplakia, and some neoplastic causes can be there for the development of leukoplakia. Inflammatory disorders, psoriasis, eczema, that is a chronic eczematous condition, chronic dermatitis, they are responsible for development of these white plaques, that is leukoplakia. Some non-neoplastic disorders जिसकी वजह से ये हो सकता है, जिसको हम अभी डिस्कस भी करेंगे, that is lichen sclerosis, lichen sclerosis and squamous cell hyperplasia, ठीक है. लाइकन स्क्लेरोसिस और स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया को अभी अच्छे से डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको फ़ौरन बता दूं कि लाइकन स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये सेम प्रेजेंटेशन आती है, और स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया में भी सेम प्रेजेंटेशन आती है. लेकिन फ़र्क ये होता है कि लाइकन स्क्लेरोसिस में एपिडर्मल थिनिंग होती है, एपिडर्मिस आपकी बहुत थिन हो जाती है, और स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया में आपकी एपिडर्मिस थिक हो जाती है. लाइकन स्क्लेरोसिस बेटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. बाय द वे, whatever they are we will discuss, but for now you just keep in your mind that this leukoplakia may be due to these disorders, may be due to these disorders, or may be due to some neoplastic causes. Neoplastic causes जैसे कि वल्वा में vulvar intraepithelial neoplasia, that is the pre-malignant condition of the vulva, VIN, vulvar intraepithelial neoplasia अगर वल्वा में डेवलप होता है तो बहुत मुमकिन है कि साथ में ये पैटर्न जो है ल्यूकोप्लेकिया का वो भी डेवलप हो जाएगा. उसके अलावा पैगेट डिजीज़ और इन्वेजिव कार्सिनोमा, ये कुछ और कंडीशंस हैं जिनमें ल्यूकोप्लेकिया
देखने को मिल सकता है। जो मेजर नॉन नियोप्लास्टिक कॉजेज हैं वो ये दोनों हैं और इन्हीं दोनों को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन इज़ लाइकन स्क्लेरोसिस, देन स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया। Lichen sclerosis is, as I mentioned, it is autoimmune, not antibody mediated, it is T cell mediated. It is T cell mediated. क्या होता है, T cells जो होते हैं they react against vulvar skin, and what happens, the T cells in your body, they get crazy and they produce some reaction against the vulvar skin. सो इसी को हम ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं बेटा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट योर ऑन बॉडी सेल्स व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट योर ऑन बॉडी टिश्यू, सो दैट इज़ द ऑटो इम्यून रिएक्शन ना। सो क्या होता है कि टी सेल्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, दे शो सम एबनॉर्मल रिएक्शन अगेंस्ट द वल्वार स्किन, वल्वा की स्किन के अगेंस्ट रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़ाहिर टी सेल्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराएंगे, वल्वा में क्रॉनिक इरिटेशन कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्मूथ वाइट प्लेक्स बन जाएंगे या पैचेस बन जाएंगे। ये उसी पैटर्न की बात हो रही है लीकोप्लेकिया की, उसमें भी यही वाइट प्लेक्स बन रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और क्या होता है कि ये पैचेस और प्लेक्स जो हैं वाइट कलर के, जो लीकोप्लेकिया का पैटर्न होता है, जो एक्चुअली हमने यही कहा कि लीकोप्लेकिया डेवलप होती है ड्यू टू लाइकन स्क्लेरोसिस, एंड हियर इज लीकोप्लेकिया, ओके। और ये जो वाइट प्लेक्स होते हैं, दे एक्चुअली इन लार्ज, they coalesce with each other and they affect the entire vulva, okay. So even I can show you lichen sclerosis if you can, yeah, just a second, yeah, you can see in this picture, yeah, this is lichen sclerosis, you can see, पीछे हमने लीकोप्लेकिया में देखा था कि प्लेक्स जो थे वो सेपरेटेड थे, कुछ यहाँ पे था, कुछ यहाँ पे था, कोई यहाँ पे था, लेकिन आप देखें यहाँ पे सारे वो प्लेक्स जो है फ्यूज़ हो गए हैं और ये एक कंटिन्यूस प्लेग बन गया है। तो यहाँ पे यही होता है आपके लाइकन स्क्लेरोसिस में कि ये जो वाइट प्लेक्स होते हैं वो इनलार्ज करके कॉलेज कर जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ और पूरी वल्वा को अफेक्ट करते हैं। दिस इज़ योर लाइकन स्क्लेरोसिस, ठीक है। ये क्यों होता है, ऑटो इम्यून मीडिएटेड है, एज आई मैंशनड। और साथ में एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, लेबिया इज़ वेरी मच, यू कैन सी लेबिया इज़ वेरी मच एट्रोफीड लेबिया, एंड इवन द वजाइनल ओरिफिस इज़ constricted, okay. Now you have to keep in your mind some features of lichen sclerosis. One thing I told you that it is autoimmune mediated, T cell show some reaction against vulvar skin, उसकी वजह से टी सेल्स की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से आपके वाइट प्लेक्स बनते हैं, वो इनलार्ज करते हैं, कॉलेज कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और पूरी वल्वा को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ जो आपकी वल्वा है बेटा वो बहुत ज़्यादा the labia becomes very much atrophied and the vaginal orifice becomes constricted, right? I hope you are clear with this, okay. Yeah, right after this, few more things related to lichen sclerosis include the histologic appearance of the lichen sclerosis. If you look at this lesion under microscope, the skin part, you will come to see there is marked thinning of the epidermis and there is degeneration of the basal cells. Let me show you what I am trying to say. Just a second, yeah, this picture is from your databases. Can you see this purple part is the epidermis, yeah, this purple part is the epidermis and below is the dermis and everything down, right? Can you see this epidermis is very much thin, कितनी ज़्यादा एपिडर्मिस थिन हो गई है। और जो बेजल सेल्स होते हैं ना, जो बेजल सेल्स होते हैं नीचे वाली लेयर में, वो देखें, कैन यू सी द डिजनरेशन ऑफ द बेजल सेल्स, या some spots which are representing the degeneration of basal cells. So this is actually you are looking at this thing under microscope. You will come to see this thing under microscope, right? And you will see that this epidermis is very much thin and the basal cells in the lowermost layer, they are degenerating, okay, they are degenerating. And one very important thing is there is excessive keratinization, that is hyperkeratosis, that is excessive production of the keratin, and you will come to see the stratum corneum, that is the topmost layer of the epidermis, it becomes thickened. Can you see the topmost layer? It is very much thickened. This is representing the hyperkeratosis. This is representing the hyperkeratosis.
excessive keratin production at the level of the topmost layer, that is the stratum corneum. So overall your epidermis has become very much thin, बेजल सेल डिजनरेट हो रहे हैं, केराटिन बहुत ज़्यादा बन रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेटम कॉर्नियम थिक हो गई है। ठीक है बेटा, इसके अलावा कुछ और फीचर्स, हिस्टोलॉजिक फीचर्स इसके मैं बताऊं कि आपको सुपरफिशियल डर्मिस के अंदर, ये तो एपिडर्मिस हो गई ना, सुपरफिशियल डर्मिस के अंदर ये वाइट एरियाज आपको दिख रहे हैं। दीज वाइट एरियाज आर रिप्रेजेंटिंग द स्क्लेरोसिस, राइट, द स्क्लेरोटिक चेंज इन द सुपरफिशियल डर्मिस। Superficial part of the dermis shows sclerotic changes, right? There is sclerosis and few more things in the histologic picture of lichen sclerosis is band-like infiltrates of lymphocytes in the superficial dermis. Can you see this band of these purple or blue colored lymphocytes? Yeah. So this is obviously, as I mentioned beta, that this is autoimmune mediated condition, so you will come to see T cells against this vulvar skin. So you can see this band of the, just a second, yeah, these blue purple colored cells, these are the lymphocytes actually. So far what have you appreciated? That epidermis has become very much thin, बेजल लेयर इज डिजनरेटिंग, टॉप मोस्ट लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम के ऊपर हाइपरकेराटोसिस है, ये रेड कलर की, और आपको स्क्लेरोसिस दिखने को मिल रही है, और बैंड ऑफ लिम्फोसाइट्स सुपरफिशियल डर्मिस में है। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो लाइकन स्क्लेरोसिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, खास करके ये पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में होती है। वैसे तो हम ये वल्वा के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो ये लाइकन स्क्लेरोसिस वल्वा पे होता है, लेकिन इसके अलावा स्किन पे कहीं पे भी हो सकता है। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो ये जो आपका लाइकन स्क्लेरोसिस है बेटा, इट कैन दिस अगेन, इफ़ यू कीप इट अनट्रीटेड दिस लाइकन स्क्लेरोसिस, इट कैन कॉम्प्लिकेट इनटू, ऑब्वियसली ये अगर सिम्टमेटिक लाइकन स्क्लेरोसिस हुआ, बड़े वक्त तक सिम्टम्स देता रहा, और अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो देयर इज़ स्लाइटली इंक्रीज्ड चांस ऑफ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ वल्वा। अगर ये लाइकन स्क्लेरोसिस सिम्टमेटिक है, पेनफुल है और इचिंग करा रहा है बहुत ज़्यादा, और आपने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, तो चांस है कि यहाँ पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाए। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। राइट आफ्टर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज एन अदर non-neoplastic cause of leukoplakia, as I mentioned earlier, that is squamous cell hyperplasia. That is, just a second, स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया। फ़र्क मैंने बताया था बेटा, स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया में एपिडर्मिस की थिकनिंग होती है, और पीछे लाइकन स्क्लेरोसिस में हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे थिनिंग हो रही है स्किन की। ठीक है, सो स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड एज हाइपरप्लास्टिक डिस्ट्रॉफी और लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। ओके, प्रीवियसली व्हाट डू वी कॉल इट? हाइपरप्लास्टिक डिस्ट्रॉफी और लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। ओके, वी टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजिक फीचर्स के ग्रॉसली किस तरीके का दिखता है और इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर कैसी आती है, तो मैं आपको बताता चलूँ बेटा कि ऑब्वियसली ग्रॉसली इफ़ यू कम टू सी इट विल बी हैविंग पैटर्न ऑफ लीकोप्लेकिया, कि वही इसमें बेटा वाइट प्लेक्स बनेंगे वल्वा के ऊपर। ठीक है, वाइट प्लेक्स बनेंगे वल्वा के ऊपर, वही जो लीकोप्लेकिया में होता है, लेकिन हिस्टोलॉजिक फीचर्स दे वेरी फ्रॉम लाइकन स्क्लेरोसिस। लाइकन स्क्लेरोसिस में क्या हो रहा था? एपिडर्मल थिनिंग हो रही थी, यहाँ पे एपिडर्मल थिकनिंग होती है, एकांथोसिस होती है। एंड लेट मी शो यू हाउ थिक नाउ एपिडर्मिस, दिस इज द स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया। कैन यू सी दिस मच थिकनिंग? दिस एंटायर इज एपिडर्मिस, एंड कैन यू कंपेयर इट विथ लाइकन स्क्लेरोसिस में ये थिकनिंग है बस एपिडर्मिस की। सो देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस इन द लाइकन स्क्लेरोसिस एंड द थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस इन द स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया। In case of squamous cell hyperplasia, you can see beta this epidermis is very much thick, and in case of lichen sclerosis it is very much thin. And also one more thing in case of squamous cell hyperplasia is hyperkeratosis. Can you see this deposition of the keratin? This is hyperkeratosis. Hyperkeratosis तो यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे hyperkeratosis कम थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. So there is hyperkeratosis as well. Also you will come to see lymphocyte infiltrates in the dermis sometimes. Lichen sclerosis में तो लाजमी आपको band of
ये मैंने बताया था ना कि बैंड ऑफ आपको लिम्फोसाइट्स मिलेगा सुपरफिशियल डर्मिस में, लेकिन इन केस ऑफ स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट्स आर प्रेजेंट बट समटाइम्स, राइट। एपिडर्मिस इज़ वेरी मच हाइपरप्लास्टिक, सो इसका मतलब ये है कि माइटोसिस सेल्स की बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये मत भूलें कि स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया कोई प्री मेलिग्नेंट या मेलिग्नेंट डिसऑर्डर नहीं है। तो इसके जो सेल्स हैं दे लेक सेल्यूलर एटिपिया, the cells are not atypical, cells are normal, the cells are not dysplastic, okay, there is very much increased mitosis, but in case of squamous cell hyperplasia there is lack of cellular atypia, that means cells are very much normal. अब सवाल ये है कि जो आपका पीछे लाइकन स्क्लेरोसिस था वो तो बेटा ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से हुआ था, स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया क्यों होती है? The cause is chronic rubbing or scratching of skin to relieve pruritus. अगर वल्वा की स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रूराइटस हो रही है और उस प्रूराइटस को रिलीव करने के लिए आप उसको रब किए जा रहे हैं, उसको स्क्रैच किए जा रहे हैं। अब वल्वा की स्किन पे प्रूराइटस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकती है। एक बार आपके वल्वा पे बहुत ज़्यादा प्रूराइटस हो रही है तो आप उसको क्या करोगे? मुसलसल उसको रब करोगे, स्क्रैच करोगे, तो जिसकी वजह से स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि बजाय अगर आपके वल्वा पे प्रूराइटस हो तो उसको मुसलसल रब या स्क्रैच करने से बेहतर है कि एंटीहिस्टामिन लिए जाएं। अगर इफ़ यू क्रॉनिकली रब इट, स्क्रैच इट, you will develop squamous cell hyperplasia, right? As I mentioned, it is not a pre-malignant or malignant disorder. It is not considered pre-malignant disorder because the cells are not atypical, cells are normal, but sometimes the squamous cell hyperplasia is present at the margins of vulvar cancer. अगर ये वल्वा है और उस वल्वा के अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है तो इस कैंसर की मार्जिन्स पे आपको स्क्वामस सेल हाइपरप्लेजिया देखने को मिल सकती है। बट रिमेंबर, squamous cell hyperplasia is never a pre-malignant or a malignant disorder, right? It is a complete non-neoplastic disorder. I hope you are clear with this, beta. I will continue the pathology of vulva in the next part, right? Thank you so much, beta. Class dismissed.